screen is not visible, sir. Okay. Is the screen visible now? Yes, sir. Okay. So these are business terminologies which are part of English communication, but they're more Yes, to do sir. with terms that are often used in business. So we can call them business jargons also, business terminologies also. So, Business, yes, sir. so there are some words like, we'll start with the alphabet J. J is judgment. Of course, we know what is judgment is. So whenever the jury member or a judge comes to a final conclusion and pronounces it or passes it, it's called a judgment. We all know that. Jumbo certificate. Yes, sir. Yeah, jumbo certificate is a document issued by consolidating or aggregating a large number of market lots into a single composite share certificate. Okay. So when you combine a lot of shares into one certificate, for example, if you buy shares, Yes, then it is either one way of doing it that you get it in electronic mode, and the second process is to get a certificate. So when you combine all the shares that you have procured into one certificate, it becomes a jumbo certificate, right? Jury. Now, suppose there's a controversial issue and one judge is not able to come to a conclusion. Then what happens is yes, a body or a group of judges are appointed, or even those people can be from other streams or field. So they yes, have to listen to the case and decide as per the voting. So a yes. large, Sir, can we call jury as a group of judges? yeah, but it necessarily need not be judges. It can be a judges, but they can also be people from other fields. Like they can be Yes. journalists, they can be academicians, right? So jury is a Sir. collection of people who will listen to a case which is controversial. Then they will have a meeting and decide upon the outcome, right? By either majority or voting or whatever process they follow. The kind is the base of payment made in form of goods. Now first is cash. When you buy something, you pay cash. Yes. And the second method is pay kind. So if you pay something in kind, then it becomes a barter system. For example, you exchange goods. I buy wheat from you and you take rice from me. So it becomes Yes. a kind of barter system. So I've not paid anything to you in cash. I've paid you in kind. Okay. Labor intensive. Now, certain jobs are labor intensive. They require employment of a large number of laborers, and certain jobs or certain works are capital intensive. So they require a large number of capital. So labor intensive jobs are those in which a lot of hands are required, a lot of manpower is required. Yes. Okay. Yes, Now, sir. landing order. It is an order to facilitate the delivery of ship's cargo issued after the completion of formality. Okay, once you have fulfilled the formality at the port, then you get a landing order. Then you can offload whatever cargo you are having as a ship. Okay, the ship can offload whatever cargo it's carrying. Laundering is process of passing fund through number of transactions with the intention to conceal the origin. See, what happens is, Excuse me, sir. yeah. Yes, sir. Sir, for the landing order, can we see like this, the discharging of cargo from the ship? Yeah, discharging, offloading, or Yes. So it's the same thing, synonymous terms. Now, laundering. Yes. See, you know what black money is. Black money is unaccounted money. The money on which no tax is paid is called black money. Now, whenever somebody is trying to conceal black money, so he or she, what he or she does is, the source is somehow concealed or hidden. Now, how can you hide the source of fund? You can either create false companies, or you can pass it through a number of transactions so that the trail is somehow concealed and nobody is able to trace the source. So in this way, you can conceal the source of funds, and this is what black marketers do. This is what people who are dealing in black money do. They try to conceal the source of money. Conceal is hide. Hide. Okay, sir. For example, if you pay me, then you are the source. You are paying me, right? But if you are paying me through a bank account or through a check, then everything that I get in form of a check or in my bank account will be accounted money.
That is, I have to pay tax on it. It can be traced. But in case of black money, if transactions are done in cash and also the cash changes hand through a number of places, a number of people, then maybe the source of the cash, the original source of the cash is concealed or hidden. That is done with the purpose of tax evasion. So this process of hiding the source is called laundering, the process of passing funds through a number of transactions so that the origin is hidden. For example, if I pay 20 crore rupees to Congress party, but I don't want to be named, because if I'm named, my name will come in media. So what I'll do is I'll give it to some third party. That third party will give it to somebody else. Then that person will give it to somebody else, and that person will give it to some party. So when you change hands through a number of people with the intention of hiding the origin, then it becomes laundering. Okay. Lease. Yes, sir. Lease is when you rent certain premises or any asset for a specified period of time. For example, if I take a piece of land for 99 years, right? So I am leasing that land. I'm kind of paying the money as a tenant for that land. So if I take something in land, so if I take something on lease, I'm not the rightful owner. I'm just a tenant. मैं किराएदार हूँ, right? Yes, sir. Legal tender, the form of money that may be legally used to pay for goods and services. So legal tender. So the rupee note is the legal tender. And people are also dealing in bitcoins, in other things, but those are not legal tenders. It is not certified by Government of India. So the currency of a country, of any particular country, is, if it is certified by the government of that country or the Reserve Bank of India, then it becomes a legal tender. That is, to Yes, deal sir. or to transact in that currency is legal. मतलब उसके पीछे force of law है. ठीक है. Liability letter of credit तो आपको मालूम ही होगा, आपका ये है. It's a Finance term. finance term. Liabilities तो आपको Yes, मालूम sir. है, जो आपकी देनदारियां होती है. Yes, sir. The money that you are supposed to pay. So Yes. the antonym for liability is asset. है ना? Asset and liability. Liability वो होता है Yes. जिसमें खर्चा होता है. Asset वो होता है जो आपको इनकम देता है. Right? Yes, sir. ठीक है. Libel, defamation material in recorded form as opposed to slander in oral. The victim file suit for damage. Libel. See, if somebody bad mouths, that is, says something wrong about some person, then it is called slander. The word uses slander, badnaam karna, है ना? But Yes, when I write something negative about a person, then it becomes libel. That is, somebody can file a suit. कोई कोर्ट में मेरे पर केस कर सकता है अगर मुझे गलत बोलता हूं तो, लिखता हूं तो. Right? Yes. लाइसेंस मतलब कि आपको ऑथराइजेशन मिलता है कि आप ये करने के, you have the permission to do something, you have the license to do something, right? Lien, the right to retain some asset till a claim is settled or a contractual. The right to retain some asset till some claim is settled. मतलब किसी चीज पे अगर लीन है, मतलब कि उसकी जो ओनरशिप है वो किसी बैंक के पास है, till the time the money is settled, the liability is settled. Limited liability. अब एक होती है कंपनी LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. इसमें क्या होता है कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उसके आप ओनर्स को कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी, अ लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू द, मतलब एक बंदे की जो लायबिलिटी है कंपनी में वो लिमिटेड है. जैसे मान लो कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अब वो पैसा उसने जो उधार लिया था वो दे नहीं पा रही, तो क्या होता है कि उसका जो मालिक होता है उसके ऊपर केस हो जाता है. लेकिन अगर वो कंपनी की ओनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो उस कंपनी के ओनर के ऊपर केस नहीं होता. तो पहले से पता चलता है आपको कि इस कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो आप उस हिसाब से ट्रांजैक्शंस करते हो उस कंपनी के साथ. समझ गए बेटा? यस सर. लिक्विडेटर, लिक्विडेशन यहां पर क्या है कि कंपनी को वाइंड, लिक्विडेशन एक्चुअली होता है कि किसी कंपनी को वाइंड अप करना, मतलब कंपनी को खत्म करना, है ना? जैसे कि मान लो कंपनी है बहुत समय से खुली हुई है, लॉस मेकिंग है, अब उसको लिक्विडेट करना है, यानी कि उसका जो एसेट्स है उनको बेचना है, उसकी जो कैपिटल है उसको भी मतलब उधारियां चुका के सब खत्म करना है काम को, तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन. और जो पर्सन अपॉइंट करते हैं उस प्रोसेस को करने के लिए उसे कहते हैं लिक्विडेटर, है ना? लिक्विडेटर, लिक्विडेशन.
लिक्विडिटी एक्चुअली क्या होती है, जो कैश आपके पास होता है ना, कोई भी मनी जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, या कैश इटसेल्फ इज कॉल्ड लिक्विडिटी, है ना। क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसके पास फिक्स्ड एसेट होते हैं, ऑफिस वगैरह, जमीन जायदाद, और उसके पास कुछ मूवेबल एसेट्स होते हैं जैसे गाड़ी घोड़ा वगैरह, और उसके पास कैपिटल होती है, जो कि वो कैपिटल ऐसे यूज नहीं कर सकते कि कैपिटल है तो निकाल ली। कैपिटल मतलब कि हो सकता है कि आपका एक गारंटी के रूप में हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो, लेकिन लिक्विड मनी वो होता है जो कि आप तुरंत आप कैश में यूज कर सकते हो। समझ गए आप? Yes, sir. लिक्विडिटी यहाँ पर किससे चीज से संबंधित है? कैश से। Yes, sir. Which can be converted easily into. which can be used for transactions easily and immediately. Yes. है ना, easily Yes, and sir. immediately, मतलब ऐसी जैसे कि मान लो आपके पास पैसा तो है, लेकिन कुछ बैंक में रखा हुआ है, कुछ गोल्ड में है, कुछ एफडी में है, कुछ जमीन जायदाद है, और कुछ लिक्विड मनी, मतलब कि ऐसा पैसा जो कि तुरंत निकाल के आप किसी को दे सको, तो उस पैसे को बोलते हैं लिक्विडिटी। लिटिगेंट, अब पार्टी टू अ केस, मतलब कोर्ट केस चल रहा है, उसमें एक पार्टी जो होती है या कोई भी पार्टी होती है उसे कहते हैं लिटिगेंट, राइट। मैंडेट, मैंडेट मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी गिवन टू सम पर्सन फॉर सम एक्शन, ठीक है। मैनिफेस्ट, अ डिक्लेरेशन बाय द मास्टर ऑफ अ शिप टू सेट सेल, अ डिक्लेरेशन बाय द मास्टर ऑफ द शिप। हाँ, मतलब मैनिफेस्ट क्या होता है कि जो शिप का एक मास्टर होता है, वो जब ऑर्डर देता है कि चलो भैया अपना अपना अपनी नाव चलाओ या अपना शिप को सेल करो, तो दैट इज कॉल्ड अ मैनिफेस्ट, ठीक है। मार्केट लॉट, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स से 100 रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या होता है, जैसे कि मेरे को शेयर खरीदना है, तो ऐसा नहीं कि मैं जाके एक शेयर खरीद लिया कंपनी का, 2 शेयर खरीद लिया, एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसमें कि आपको खरीदना होता है ना। तो अगर किसी कंपनी का, जैसे मान लो मेरे को स्टेट बैंक का या रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो रिलायंस वाले ने बोला कि यू हैव टू बाय मिनिमम 100, उसके नीचे नहीं हम बेचेंगे, तो वो जो मिनिमम लॉट होता है, तो उसे उतने में ट्रांजैक्ट करना पड़ता है एट द स्टॉक एक्सचेंज। अपने स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का नाम, आवाज आ रही है सर? निफ्टी। यस सर। बॉम्बे एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, निफ्टी भी है। यस सर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, चलो ये मालूम होना चाहिए। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कॉर्पोरेट्स में जितने मतलब कायदे कानून लॉ वगैरह होते हैं उनसे डील करती है। मीडिएशन, मीडिएशन मतलब कि दो ग्रुप के बीच में एक वो करना, दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए एक इंटरवेंशन करना, मतलब कि बिचौलिया। बिचौलिया डज मीडिएशन, अ पर्सन हु ट्राइज टू make both parties come to an agreement is called mediator, and the process is called mediation, ठीक है। mediation, yes sir. Memorandum of association, a fundamental document which contains the provision of the company's constitution, yes sir. Memorandum of association is कंपनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मर्चेंट बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट स्पेशलाइजेस इन सिक्योरिटी मार्केट एक्टिविटीज। मर्चेंट एक तो होता है वो बैंक जिसमें कि हम लोग अपना खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट। मर्चेंट बैंकर वो होता है जो कि सिक्योरिटीज में डील करता है, मतलब उसका काम होता है शेयर्स वगैरह बेचना खरीदना ये सब। मर्जर, वह दो कंपनियों का जब आपस में, 2 या 3 कंपनियों आपस में विलय होता है, विलय है ना, अमलगमेशन, उसे कहते हैं मर्जर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनीज व्हिच एप्लीकेशंस हैव टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन पब्लिक इशू फॉर अलॉटमेंट, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट तय किया जाता है, उतना होना चाहिए, तब जाके वो किसी को एलोकेट करते हैं। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है कि मान लो कि एक ही कंपनी है, वो मतलब जैसे मान लो मेरे को yes sir, single sharer in whole country, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोली। अब ऐसे कोई एग्जांपल बचा नहीं है इसका कि रेलवे इज अ मोनोपोली। पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने होते हैं ना, पब्लिक यूटिलिटीज, वो मोनोपोली होती है। जैसे रेलवे पे कौन है, अब तो खैर प्राइवेट उन्होंने कर दिया, लेकिन रेलवे में पूरी मोनोपोली थी सरकार की, है ना। मोरेटोरियम, अ फ्रीज ऑन द पेमेंट ऑफ डेट्स बाय अ गवर्नमेंट इन द टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट उधार लेके काम करती है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई तो वो उधार की किस्तें देना बंद कर देती है, तो वो फ्रीज लगा देती है, उसे कहते हैं मोरेटोरियम। अ फ्रीज ऑन ऑल पेमेंट्स, दैट इज ऑल डेट्स आर फ्रोजन, कोई उसमें पेमेंट नहीं करते। मॉर्गेज, अ लीगल चार्ज ऑन प्रॉपर्टी व्हिच होल्ड्स
हाँ, अगर मान लो किसी ने कोई लोन लिया है तो वो अपनी कोई भी संपत्ति को गिरवी रखता है, तो गिरवी इज कॉल्ड मॉर्टगेज, ठीक है। नाबार्ड, Yes, sir. नाबार्ड एक्रोनिम है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नैस्डैक, Yes, sir. जैसे हिंदुस्तान का है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नैस्डैक कहाँ का है? Sir, don't know. हाँ, एक ही नैस्डैक को थोड़ा सा और कंफर्म कर लेना, ये यूएस वाला है कि कौन सा है नैस्डैक। नैस्डैक वैसे यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, इसको एक बार गूगल करके देख लेना। नेगोशिएबल Okay, sir. इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ डॉक्यूमेंट इन विच प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू अनदर इन गुड फेथ बाय सिंपल डिलीवरी चेक्स। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एग्जांपल लाइक चेक्स, बैंक नोट्स वगैरह, जो कि इजीली कन्वर्ट हो सके, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेट प्रॉफिट जो होता है शुद्ध प्रॉफिट, ये तो आपको मालूम ही है। नेटवर्थ, Yes. नेटवर्थ क्या होता है कि एक कंपनी की लायबिलिटी निकाल के उसकी जितनी मार्केट वैल्यू निकलती है उसे कहते हैं नेटवर्थ, ठीक है। लायबिलिटी मतलब उसकी देनदारी, वो निकाल दी, Yes, sir. उसकी नेटवर्थ पता चलती है। नो डिलीवरी पीरियड, टाइम ड्यूरिंग विच द रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी रिमेन्स क्लोज। हाँ, मतलब कि उस समय तक जब तक कि कोई होता है रजिस्टर जिसमें कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते, उसे कहते हैं नो डिलीवरी पीरियड, जिसमें कि शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते उस पीरियड में। नॉन क्यूमुलेटिव Yes. implies that arrears of dividend will not be, हाँ, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि ये जमा नहीं होंगे, मतलब इनकी अवधि के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी ऑल्सो रेफर टू एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें ये सारी चीजें जो दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ा सा टेक्निकल है, मॉर्टगेजेस, लीजेस, जो लंबे समय के लिए कंपनी नेगोशिएट की है, दोज आर कॉल्ड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, एसेट्स व्हिच आर नॉट क्रिटिकल फॉर अ कंपनी। हाँ, तो कुछ एसेट्स होते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं कंपनी के लिए, है ना, उसके जैसे कंपनी ने कोई होल्डिंग ली हुई है, किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसके फिक्स डिपॉजिट वगैरह। और कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो कि क्रिटिकल नहीं होते, मतलब वो लेके रख लिए, वो कभी जरूरत में काम आए तो आए, तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं नॉन क्रिटिकल Operating एसेट्स। assets. नोटराइज, नोटराइज क्या होता है कि जैसे अपन ने किसी नोटरी के पास जाके उसको उस पर सील साइन लगवा लिए और उसको ओथ में डिक्लेयर कर दिया, तो नोटरी पब्लिक भी वही होता है, पर्सन यूज सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। NSE, नेशनल Yes. स्टॉक एक्सचेंज, तुमने बताया था अभी निफ्टी, है ना, Yes, sir. निफ्टी बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, फिर BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस तरह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है यूएस का। ओथ क्या है? ओथ मतलब कि शपथ लेना, राइट। ऑपरेटिंग Yes, एसेट्स, sir. operating assets, these assets are those that are required for a business to complete its day-to-day functions. Options, the contractual right but not the obligation to buy or sell a specific amount of given। हाँ, इसकी भी थोड़ा टेक्निकल है बेटा, इसको भी देख लेना, है ना, इसको समझ लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर, अ रिटन डायरेक्शन ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर, वन और मोर सेम थिंग, है ना। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि वो जो जगह है वो राम जन्मभूमि ही है, तो इट वाज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओवरड्राफ्ट मतलब कि जितना अमाउंट अवेलेबल है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। ओवरहेड्स होता है कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स मतलब कि इंसिडेंटल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? जैसे मान लो नेहा ने कोई एक नया डिजाइन बनाया, एक नया उड़ने वाली कार बनाई और उसने उसको पेटेंट करा लिया कि आप जो भी ये कार बनाएगा उसको मेरे को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो पेटेंट क्या हो गया? आपने उसकी कॉपीराइट ले लिया, उसका IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया, IPR, पेटेंट, ठीक है। पेई मतलब अ पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल, अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। इसके बाद आता है पेन स्लिप, वो जो अपन लोग एक भरते हैं एक फॉर्म टाइप का, उसे कहते हैं पेन स्लिप, ठीक है। टू डिपॉजिट कैश या ड्राफ्ट या व्हाटएवर, और टू इवन विड्रॉ। परज्यूरी, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ। जैसे मान लो आपने अपना स्टेटमेंट नोटराइज कराया लेकिन आपने उसमें झूठ बोल दिया, तो इट विल गो इन फॉर परज्यूरी, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ओथ, है ना। परक्विजिट्स मतलब कि परक्विजिट्स होता है कि स्मॉल बेनिफिट्स। जैसे मान लो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे लंच के कूपन्स दे दिए कि आपका जो दोपहर का खाना होगा उसके लिए हम आपको कूपन दे रहे हैं, किसी भी 5 स्टार होटल में जाके लंच करके आ सकते हो। तो मेरी सैलरी के अतिरिक्त जो मुझे मिला वो क्या हो गया? परक्विजिट्स, पर्क्स बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स और फुल फॉर्म में परक्विजिट्स, ठीक है।
पर्सनल गारंटी मतलब कि मान लो आप किसी को लोन चाहिए और उसके पास कोई भी मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, तो किसी बंदे ने उसकी पर्सनल गारंटी ले ली, तो इट्स कॉल्ड पर्सनल गारंटी। पेटिशन क्या होती है? एक अर्जी देना, फॉर्मल अर्जी देना, कहां पर? एक कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। पेटिशनर वो होता है जो अर्जी देता है ना, प्लेंटिफ या लॉ सूट, पेटिशनर उसको प्लेंटिफ, लॉ सूट सेम थिंग। पेटी कैश मतलब अ स्मॉल अमाउंट, जैसे किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ कैश रोज रोज रखते हैं ताकि वो छोटे छोटे अमाउंट जो हो, जैसे ड्राइवर ने 100 रुपए का कुछ मांगा, 50 रुपए का कुछ स्टेशनरी आ गई, फोटोकॉपी आ गई, एक्सपेंसेस ऑफ डेली बेसिस। हाँ, उसको कवर करने के लिए। यस सर। पिग ऑपरेटर्स who get killed by speculators, ये थोड़ा पता कर लेना, आई डोंट नो अबाउट दिस। प्लेसिंग, ओके सर। हाँ, अ प्रायर अरेंजमेंट टू प्लेस और सेल शेयर्स टू सेलेक्टिव इन्वेस्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। प्लेसिंग मतलब कि एक अरेंजमेंट रहता है जिसमें कि कोई कंपनी अपने सेल शेयर्स जो है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही देती है, ठीक है। प्लेंटिफ, अ पर्सन हु इश्यूज हु सूज और स्टार्ट्स अ सिविल कोर्स, मतलब जो पहले मुकदमा दर्ज कराता है उसे कहते हैं प्लेंटिफ। प्ली क्या होती है कि अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज हुआ, उसने जो आंसर में अपनी जो अर्जी दाखिल करी उसे कहते हैं प्ली बार्गेन, द अग्रीमेंट डिफेंडेंट मेक्स विद द प्रोसिक्यूटर टू अवॉइड अ ट्रायल। हाँ, प्ली बार्गेन मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने कोई चार्ज लगाया और वो बोल रहा है मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस कर दूंगा, तो उसने क्या किया? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, तो उसे कहते हैं प्ली बार्गेन। इसमें फिर कोई कोर्ट में जाता नहीं है। प्लेजिंग्स, द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द कोर्ट बाय पार्टीज इन अ सिविल और क्रिमिनल केस। कोई भी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि एक अर्जी यानी कि एक प्ली के साथ, प्ली या प्लेंटिफ जो भी करता है उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए जाते हैं उसे कहते हैं प्लीडिंग्स। पॉलिसी, हाँ, पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी तो एक तो वो होती है जो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंश्योरर, मतलब जैसे मान लो तुमने अपने ऊपर 10 लाख का बीमा लिया, तो तुमको क्या मिलेगी? एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने जो है अपना 10 लाख का बीमा कराया है, ठीक है। उसे कहते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जैसे कि अब लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, अब जैसे मैं मान लो मैं एक मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो मैंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है कि मैंने रिलायंस के 120 शेयर लिए हुए, टाटा के 500 लिए हुए, और उसके बाद मैंने कुछ अपने आरबीआई की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ गोल्ड खरीदा हुआ है, कुछ मेरे पास जमीन जायदाद भी है। तो ये सब मिला के मेरा पोर्टफोलियो बन गया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, है ना। और कुछ मेरे पास लिक्विड कैश भी है, और कुछ मेरे पास एफडीज भी हैं, कुछ मेरे पास रिकरिंग डिपॉजिट्स भी हैं। तो इस तरह की चीजें मेरे पास हैं। तो ये सारा जो चीजें वो मेरा क्या है? पोर्टफोलियो, ठीक है। ये फाइनेंशियल टर्म्स में इसे कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो। पोस्ट डेट, अब मान लो मैंने किसी को पोस्ट डेट का चेक भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, या कोई ट्रांजैक्शन भी पोस्ट डेट पे कर सकता हूँ। पोस्ट मतलब किसी आगे आने वाली डेट। प्राइस बैंड, द लिमिट्स विद द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट, ठीक है। द लिमिट विद इन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी यानी कि शेयर इज अलाउड टू फ्लक्चुएट। जैसे मान लो कि टाटा का शेयर है वो 1000 और 1200 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, तो उसे कहते हैं उसका प्राइस बैंड, ठीक है। प्राइस रिगिंग, मतलब कोई क्या करते हैं कि किसी चीज का जो 10 रुपए का चीज, जैसे क्या करते हैं 10 रुपए का जो भाव है किसी का, तो उसका 100 का करने के लिए उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल गलत चीजें कर देते हैं, तो उसे कहते हैं प्राइस रिगिंग। किसी चीज का भाव अनाप शनाप बढ़ा देना। प्रिंसिपल क्या होता है? तुम बताओ प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब कि मूल, नहीं वो नहीं, ये तो सब फाइनेंस की बात हो रही है ना, यहाँ तो कुछ और बात हो ही नहीं रही। प्रिंसिपल वो होता है मूलधन, जो कि जैसे मान लो मैंने तुमको 1 लाख रुपए उधार दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 1 लाख रुपए। वो भले ही उसके अंदर 10% का वो लग गया इंटरेस्ट, लेकिन मूलधन जो होता है ना, मूलधन ओरिजिनल, उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, द बेसिक अमाउंट। यस सर, मूलधन, बेसिक अमाउंट। प्रोप्राइटर, ओनर। प्रोसिक्यूट, किसी को कानूनी रूप से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में घसीटना। प्रोसिक्यूटर जो वो होता है जो कि अटॉर्नी, मतलब कि स्टेट का प्रोसिक्यूटर हो सकता है जो सरकार नियुक्त करती है किसी वकील को। प्रोस्पेक्टस और डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनीज इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन टू द, हाँ, ये सब आपको बेटा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब फाइनेंशियल टर्म्स है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब नॉर्मल इंग्लिश का नहीं है, सारी चीज फाइनेंशियल मार्केट से डील कर रही है। तो एक बार आपको ये याद हो गया ना, तो आपको तो जो CNBC आवाज और ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज आती है वो भी समझ में अच्छी तरह आएगी, क्योंकि उसमें सारे डिस्कशन यही होते हैं
यही टर्म्स यूज करते हैं। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मतलब वो किसी के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन करता है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग, है ना, बिजनेस मीटिंग। कोटेशन मतलब कि जैसे मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस में समझाया था ना कि किसी टोटल कॉस्ट, किसी काम करने की टोटल कॉस्ट, उसे कहते हैं कोटेशन। जैसे मैंने बोला आपको 100 कंप्यूटर लगाने मेरे कॉलेज में, तो आपने अपना रेट कोट किया, तो उसे कहते हैं कोटेशन। कोट ड्रिवन ट्रेडिंग, इट रेफर्स टू ट्रेडिंग इन विच ब्रोकर्स कोट फॉर अ बाइंग और सेलिंग अ सिक्योरिटी साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये भी एक फाइनेंशियल टर्म है, इसका आपको याद करना पड़ेगा। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन वो पीरियड होता है जिसमें कि डिमांड नहीं होती है ना, जैसे कि श्राद्ध आ जाता है, श्राद्ध, श्राद्ध के समय में कोई ना खरीदता है ना बेचता है, तो उस समय मार्केट में हल्का सा रिसेशन आ जाता है। वैसे रिसेशन एक ब्रॉड टर्म है, छोटे से पीरियड के लिए नहीं होता। रिसेशन का मतलब होता है लैक ऑफ डिमांड। अगर डिमांड नहीं है तो यानी कि माल मैंने जो बना के रखा है वो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो मैं फिर लोगों को एम्प्लॉय क्यों करूंगा? तो ये पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हॉल्ट हो जाती है, उसे ही कहते हैं रिसेशन। जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, है ना, 1930s में। अभी भी पिछले साल कोविड की वजह से रिसेशन हुआ, इकोनॉमी ग्रो करनी बंद हो गई। रिकंसिलिएशन, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू फिगर्स, दो फिगर्स को रिकंसाइल करते हैं, या तो आप जानते ही हो, ये तो आपका अकाउंट्स का आपका वो है, है ना। रिकॉर्ड डेट, a date on which the records of a company are closed for the purpose of determining the stockholders to whom dividends वगैरह are to be sent। ठीक है। रेमिटेंस, अमाउंट ऑफ मनी सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर बाय पोस्ट। जैसे क्या होता है कि जो फॉरेन में रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, रेमिट करते हैं मनी। जैसे जो यूएस में रहता है, उसने अपने मम्मी पापा को पैसा भेजा इंडिया में, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस, है ना। फिर रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब होता है the rate at which government lends money to public। हाँ, या फिर रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक्स होते हैं वो पैसा बोरो करते हैं किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। रिजर्व, अमाउंट सेट असाइड फॉर मीटिंग कंटिंजेंसी, है ना। रिजर्व मतलब अमाउंट सेट असाइड टू मीट कंटिंजेंसी, मतलब कि कोई इमरजेंसी। रिजर्व प्राइस, द मिनिमम प्राइस सेट इन एडवांस, कि मान लो कोई चीज आपको नीलाम करनी है, उसने आपने पहले बोल दिया कि मैं 1000 रुपए से शुरू करूंगा, मेरे को 1000 रुपए तो चाहिए, उसे कहते हैं रिजर्व प्राइस। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड मतलब फुटकर, है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स, जस्ट लाइक इट साउंड्स, द टर्म इज रिप्रेजेंट्स एनी प्रॉफिट अर्निंग दैट आर रिटेन बाय द। हाँ, अब मान लो किसी ने 100 रुपए का सामान बेचा है 150 रुपए में, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसने अब एक कंपनी के रूप में आपको क्या करना पड़ता है कि अपने सारे एक्सपेंसेस मीट करने के बाद आपको सारा पैसा जो आपका प्रॉफिट का बचा उसको शेयर होल्डर्स को बांटना पड़ता है, उसे ही कहते हैं डिविडेंड। लेकिन अर्निंग कंपनी क्या करती है कि उसमें से रिटेन कर लेती है कि नई बिल्डिंग बनाएंगे, अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। ये एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर सकती, उसके लिए अलग हेड होता है, तो वो अपनी अर्निंग्स में से कुछ पैसा रोक लेती है। अब उस किस पर्पस के लिए रोकती है वो कंपनी जाने, है ना। ऐसा पैसा जो कि अर्निंग्स में से रोक लिया जाता है उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, रिटेन मतलब कि रोक लेना। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जैसे मैंने एक लॉ बनाई कि अब जो लोग शादी करेंगे उनकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, पर मैंने इसको बोला कि ये एप्लीकेबल होगा रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब 2014 से लागू होगा ये। 2014 का मतलब क्या है कि अरे 2014 तो निकल गया, अभी तो 2020 है, तो 2014 से 20 यानी 6 साल पहले से लागू होगा। तो मैंने अभी कानून बनाया और उसको लागू कर दिया 6 साल पहले से, तो क्या हुआ, ये रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये कानून जो बना रेट्रोस्पेक्टिव बन गया। एक और कानून बन सकता है कि भैया आज से 1 साल के बाद ये लागू होगा, ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। रेट्रो, रेट्रो मतलब पीछे से, है ना। तो सरकार ऐसा करती है, कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव कानून बना लेती है ना, उसका उद्देश्य भी डिपेंड करता है। रिजर्व रेपो रेट, ये भी तुम देख लेना। रिवॉल्विंग क्रेडिट, बेटा ये भी आपका फाइनेंस का टर्म है, फैसिलिटी टू बोरो मनी अप टू सर्टेन पीरियड। ठीक है। रिग्ड मार्केट, जैसे रिग किसी शेयर का अपन प्राइस, शेयर वो स्टॉक मार्केट में जो डील करते हैं वो लोग रिग करते हैं ना, तो मार्केट को भी रिग कर देते हैं। जैसे एक अभी स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता का स्कैम। अब ये सर 1992। हाँ, लेकिन तुम उसको मालूम है क्या हुआ था? नो सर, उसकी एक मूवी अगर है, तुम वो बस देखना ये पड़ेगा। तुमने ये सारी चीजें पढ़ ली, याद कर ली ना, तो तुम अगर गूगल भी करोगी तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो वो ये फाइनेंशियल टर्म्स को या फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए ये सारे टर्म्स को याद रखना जरूरी है। तो मैंने तुमको बताया ना, कम से कम 3 से 5 वर्ड्स रोज इसके याद करो। ये तुमको पूरे समय यूज करने हैं ये, तो इनको याद कर लोगे ना, तो जब वो यूज होंगे तो तुमको पता चलेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, और रिवाइज भी होगा। ठीक है। अब मैंने पेटेंट बताया था, पेटेंट का मतलब किसी चीज की ओनरशिप लेना। जब ओनरशिप लेते हो तो वो चीज बिकती है ना, तो उसका परसेंटेज कुछ कमीशन के रूप में आपको मिलता है, उसे ही कहते हैं रॉयल्टी, है ना। रमेजिंग अ थरो सर्च ऑफ शिप,
बाय कस्टम ऑफिसर्स। ये तो इजी है। रमेजिंग मतलब कस्टम वाले क्या करते हैं कि शिप का ऊपर एकदम धावा बोलते हैं, तो शिप वाले क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उसमें सोना चांदी वगैरह छुपा के लेके आते हैं ताकि कस्टम की ड्यूटी ना पड़ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, कोस्ट गार्ड वाले, ये पूरा रमेज करते हैं शिप को, पूरा अस्त व्यस्त करके देखते हैं ताकि अगर कुछ स्मगलिंग हो रही हो तो पता चले। साफ्टा ये पुराना टर्म है, अब तो खैर चेंज हो गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये बहुत पुरानी बुक है क्या? नो सर। ये साफ्टा तो बेटा खत्म हो गया, तुम इसको गूगल करना है ना मेरे अभी क्लास के बाद। साफ्टा ओके क्यों सर। पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तो सार्क भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सार्क की कोई मीटिंग ही नहीं होती। साउथ एशिया, इसका अब तो उसका मीनिंग भी नहीं पता, इतना पुराना हो गया। इसमें क्या हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो बहुत समय से मीटिंग ही हुई। ये दोनों टर्म्स को तुम गूगल करके समझना, है ना। सैल्वेज क्या होता है, रिकवरिंग आइटम्स फ्रॉम साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाँ, जैसे मान लो कि कोई जैसे कोई प्लेन नीचे क्रैश हो गया, उसमें से हमने फिर भी उसमें से दो चार चीजें जो बच गई काम की थी वो निकाल ली, तो उसे कहते हैं सैल्वेजिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग मतलब जैसे कि मान लो कि आपने गेहूं खरीदना है, तो आप वो बोरे के अंदर वो सा सुआ जैसा घुसा के देखते हो ना निकाल के कि उसकी कैसी क्वालिटी है, चावल की, गेहूं की, उसे कहते हैं सैम्पलिंग, है ना। तो जो गांव की मंडियों वगैरह में करते हैं लोग। स्कैम जिसमें मैंने आपको बताया हर्षद मेहता ने अपना एक स्कैम किया था बहुत बड़ा, जिसमें कि पूरा मार्केट रिग कर दिया था। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जैसे कि आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करता है, उससे सेबी क्या करती है, वो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, उनको कंट्रोल करती है। उसके अंदर ये देखती है कि जो ग्राहकों का हित है वो सब पालन हो रहा है कि नहीं, ये देखती है वो। सिक्योर्ड लोन, मेनी लेंडर्स विल रिक्वायर some kind of security when loaning money. It is called secured loan. Segmental reporting on the various segments of business activity is called segmental reporting. Set off a claim on one party which is adjusted against an amount payable to another. मतलब क्या किया कि कहीं और से आपने किसी पैसे को कुछ बैलेंस करके ओके कर दिया। सेटलमेंट, इट इज द स्क्रिप्ट वाइज, हाँ आप देखो सेटलमेंट यहाँ पर पूरा स्टॉक एक्सचेंज के होता है। शेयर, स्क्रिप्ट वाइज नेटिंग ऑफ द ट्रेड्स बाय अ ब्रोकर एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग साइकिल। अब ये बेटा ये भी एक फाइनेंस टर्म है, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की भी जानकारी होनी चाहिए और मुझे भी होनी चाहिए। अब ये क्योंकि एक फाइनेंस का टर्म है तो अगर इसको सर क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स तो मालूम है हमको, सेटलमेंट ऑफ लोन्स भी मालूम है, लेकिन यहाँ सेटलमेंट क्या है, यहाँ शेयर का सेटलमेंट है, उसकी प्रोसेस बताई गई है, ठीक है। ओके सर। अब शेयर क्या होता है, द यूनिट ऑफ अ कैपिटल, मतलब कि शेयर वो होता है कि आपने जैसे एक कंपनी के आधे शेयर खरीद लिए तो आपने आधी ओनरशिप ले ली। तो शेयर क्या होती है, एक्चुअली आप ओनरशिप अपनी ट्रांसफर कर रहे हो इन्वेस्टर के ऊपर, और इन्वेस्टर से आप क्या ले रहे हो, पैसा। पैसे को आप कहाँ लगा रहे हो, अपने बिजनेस के लिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देना पड़ेगा हर साल। तो हर साल आप अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कानून है, किसने बनाया, सेबी ने बनाया है ना, और कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने बनाया है कि आप अपना सारा जो है प्रॉफिट उसमें से कुछ परसेंटेज रख के आपको इतना परसेंट जो है वो शेयर होल्डर को वापस करना ही करना है, ये रूल है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, ताला लगा देंगे वो, ठीक है। तो शेयर, अब जितने शेयर आपके पास है उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है कि हमने इतने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो फिर वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। शेयर सर्टिफिकेट बता दिया आपको, शेयर होल्डर ही बता दिया। SIB, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ यूके, पर यूके का यहाँ क्या करना है ये भी देख लेना आप क्या है। स्प्लिटिंग, डिवीजन ऑफ अ शेयर ऑफ अ लार्ज डिनोमिनेशन टू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। अच्छा, तो बड़े शेयर होल्डर्स मतलब जितने भी है उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉट कैश मींस पेमेंट इज ड्यू इमीडिएटली, ठीक है, ये भी देखो एक टेक्निकल टर्म है। स्टैग, एन एप्लीकेंट or for a new issue of share who hopes to sell the shares on allotment at a profit, trading commences in the secondary market. Again, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टर्म है, अगर आप बेटा किससे समझ सको तो ठीक है, इसको सब आप टिक करते जाना, है ना। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी आपने रजिस्ट्री कराई तो सरकार को आपको फीस देनी पड़ती है, तो आप क्या करते हो, स्टैम्प खरीदते हो उतने के, ठीक है। तो जितने का आप स्टैम्प खरीदोगे उतना पैसा सरकार की ट्रेजरी में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें डिफिकल्ट फाइनेंशियल टर्म्स है वो अगर आप अपने ये सर से पूछो ना तो वो बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी जितने मेरे को इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहे हैं मैं आपको सब समझा रहा हूँ, है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस दैट, जैसे मान लो मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिए
कि मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 10 तारीख को ड्यू होगा हर महीने, तो इसमें से इतना पैसा काट के आप दे देना इनको, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैट्यूटरी क्या होता है? बाय लॉ। तो दोज रिकॉर्ड्स व्हिच आर मैंडेटरी टू बी केप्ट बाय लॉ आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बुक्स। तो ये बुक्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि कानून कहता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स की लॉज कहती हैं। स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर हम लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज है, सिंपल सा। स्टॉप ट्रांसफर, इट इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय एन अकाउंट नॉट टू इनकैश एनी पेमेंट। हाँ, तो जैसे मैंने चेक इशू किया, बाद में पता चला कि मेरे को जो गुड्स मिले वो सब टूटे हुए थे, तो अपने बैंक को मैं एप्लीकेशन लिख के दे सकता हूँ कि जो ये चेक आएगा ना आपका इस कंपनी का, इसको आप पे मत करना, ऑनर मत करना, उसे कहते हैं स्टॉप ट्रांसफर। सबजुडाइज, मान लो कोई जैसे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो केस था, वो कम से कम कितने 100 साल चला है ना, तो अब उस पे सब लोग जो है वो कमेंट करने से बचते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी सबजुडाइज था। सबजुडाइज मतलब इट इज अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी और कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Subrogation, the legal principle that entitles an insurer only the actual loss sustained in case of pure indemnity। हाँ, subrogation वो होता है जैसे मान लो कि किसी ने अपनी गाड़ी का 5 लाख का बीमा कराया, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पता चला कि जो नुकसान हुआ सिर्फ 25,000 का है, तो हो सकता है कुछ उसमें प्रोसेस हो जिसमें कि अब 5 लाख का बीमा कराया तो 5 लाख तो देना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है कि भैया जितना उसके अंदर लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो, तो उसे कहते हैं द लीगल प्रिंसिपल दैट एंटाइटल्स द इंश्योरर ओनली टू द एक्चुअल लॉस। तो सिर्फ 25,000 का लॉस हुआ तो 25,000 ही पेमेंट करेंगे, 5 लाख नहीं करेंगे, हालांकि 5 लाख की लायबिलिटी थी लेकिन नहीं करा, तो वो जो प्रोसेस लीगल होता है उसे कहते हैं सबरोगेशन। समन्स, समन्स क्या होता है कि किसी को अदालत में हाजिर होने का फरमान जारी करना, समन्स। ठीक है, लीगल पेपर। आप इसको वारंट भी कह सकते हो, वारंट होता है ना। हाँ, इसके बाद सुओ मोटो, द कोर्ट में टेक द एक्शन ऑन इट्स ओन। क्या हुआ था कि अभी जो कोविड की सेकेंड लहर आई थी, उसके अंदर सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उस पूरे उसका संज्ञान लिया। संज्ञान बोलते ना, संज्ञान। यस सर। तो कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सामने आके सरकार से पूछा कि भैया इतने लोग मर रहे, क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या कर रहे हो, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, कोई गेम प्लान, एक्शन प्लान है? तो कोर्ट ने कैसे एक्ट किया? ऑन द बेसिस ऑफ सुओ मोटो, मतलब ऑन इट्स ओन, क्योंकि कोर्ट भी एक प्रकार का अंग है ना गवर्नेंस का, तो उन्हें अपने आप जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा के सरकार को जगाया कि भैया आप कर क्या रहे हो, है ना। तो दैट वाज कोर्ट टुक अ सुओ मोटो केस। उसका स्वैप, स्वैप क्या होता है? अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच एक्सप्लॉइट्स आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज बिटवीन मार्केटर्स इन व्हिच टू काउंटर पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज स्ट्रीम्स ऑफ पेमेंट्स ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेशन लॉ। ये बेटा थोड़ा समझ के पढ़ लेना, स्वैप ये भी फाइनेंशियल टर्म है। टेक ओवर तो ये होता है कि एक कंपनी के शेयर खरीद के कोई उसकी ओनरशिप खरीद ले, टेक ओवर, ये तो इजी है। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल होता है, टेंजिबल का मतलब होता है जिसको टच कर सको, छू सको। इंटेंजिबल हो सकता है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज इंटेंजिबल, है ना। तो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। और टेंजिबल क्या होता है, जैसे टेबल चेयर वगैरह जिसको मैं छू सकूं, तो टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम छू सके। ठीक है, और क्या है? टैरिफ, टैरिफ मतलब कि ड्यूटीज, जैसे कोई इंपोर्ट करता है कोई चीज तो उसके ऊपर हम जो ड्यूटीज लगाते हैं उसको कहते हैं टैरिफ। टैक्स हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे वो होता है कि जैसे मान लो कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, उसको बोला 5 साल का टैक्स हॉलीडे, है ना, हमारे यहाँ आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, चलो 5 साल हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो उस पीरियड को कहते हैं टैक्स हॉलीडे। टैक्स लीन, इफ योर बिजनेस फेल्स टू पे टैक्सेस ऑन टू द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट, the IRS you may find the asset seized। हाँ, अब मान लो किसी ने टैक्स की लायबिलिटी पूरी नहीं करी, तो वो आके आपके घर पे ही छापा मार देंगे और सील कर लेंगे, तो उसे कहते हैं टैक्स लीन। टेंडर मैंने आपको बताया था, टेंडर बताया क्या? टेंडर नो सर। हाँ, ये मैं बताऊंगा, एक दो टॉपिक्स है जो कि एक्स्ट्रा बता दूंगा क्योंकि ये आपके संबंधित है, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हमने कोटेशन का पढ़ा था, सेंडिंग अ कोटेशन, देन सेंडिंग प्लेसिंग एन ऑर्डर किया था ना। यस सर। तो कोई प्राइवेट संस्था होती है, उसको अगर कोई बड़ा ऑर्डर देना पड़ता है तो वो कोटेशन कॉल करती है। सरकार को कोई बड़ा काम करना होता है तो वो क्या करती है? टेंडर फ्लोट करती है। कहाँ करती है? न्यूज़पेपर में। जैसे सरकार को मान लो एक हाईवे बनानी है यहाँ से सीहोर, तो सरकार चोरी छुपे नहीं कर सकती कि उसने अपने चाचा के लड़के को दे दिया, नेता के मामा के लड़के को मिल गया काम, ऐसा किया ना तो घोटाला कहलाता है, स्कैम। तो सरकार को क्या करना पड़ता है? ओपन टेंडर देना पड़ता है
कि हमको यहां से सीहोर की सड़क बनानी है और सड़क इस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी लिखते हैं, साइज लिखते हैं, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, उसमें पोल्स होने चाहिए, उसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब इस काम को जो सबसे सस्ते में करेगा उसको वो काम एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार ने Yes, बोला sir. कि जो काम कर रहा है उसके पास कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके पास बैंक में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, उसके पास कम से कम 100 लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए, उसके पास मशीनें होनी चाहिए, अगर ऐसी सारी फुलफिलमेंट करता है कोई, तो कोई भी वो सड़क को बनाने के लिए आगे आ सकता है। बंद लिफाफे में अपना वो प्राइस कोट करता है। मतलब मैंने बोला कि मैं सड़क 1 करोड़ रुपए में बनाऊंगा, तो एक और अंकल जी आ गए, उन्होंने बोला कि मैं इसको 80 लाख में बना दूंगा। एक और पार्टी आ गई, बोला हम तो 50 लाख में बना देंगे। अच्छा, तीनों Yes, को sir. सेम क्वालिटी का काम करना है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन जो सबसे कम दाम में करने को तैयार होता है उसको काम मिल जाता है, इसी कहते हैं टेंडर। समझ में आ गया? Tender. Yes, sir. टर्म लोन मतलब कि these debt are financing tools used to raise needed funds for your small business. टर्म लोन मतलब कि छोटा छोटा लोन है ना, टर्म लोन और छोटा लोन, छोटे बिजनेस के लिए छोटा लोन आर कॉल्ड एज टर्म लोन। टेस्टिमोनियल Yes. सर्टिफिकेट है ना। अब इसके देखो टेस्टिमोनियल फाइनेंशियल टर्म में यूज किया है। आपके जो आपने जितने सर्टिफिकेट अपने स्कूल में अर्जित किए, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज टेस्टिमोनियल्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फाइनेंशियल टर्म की बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशंस और क्रेडिट Yes. है ना, फाइनेंस के टर्म में। टाइटल, टाइटल क्या होता है? किसी चीज का मालिकाना हक है ना, मालिकाना हक, इसको समझ लो आप। टॉर्ट, ये भी नई चीज है। सिविल इंजरी इंक्वायरी और Yes, sir. Tort means wrong. हाँ, रॉन्ग टू समवन एल्स, ठीक है। टीक्यूएम, Yes. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हाँ, ये भी आप कॉन्सेप्ट को गूगल करके समझना अच्छी तरह। ट्रेड डिस्काउंट्स, ये जो डिस्काउंट जो एक दूसरे को देते हैं है ना, बाय वन टू अनदर। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है कि एक डिस्टिंक्टिव मार्क जो कि क्वालिटी को बताता है, आईएसआई मार्क हो सकता है। ट्राई, जैसे आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए होता है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इससे ट्राई होता है टेलीकॉम को जो ऑपरेट करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि ग्राहकों की रक्षा की जा सके, उनके हितों की। Yes. बिल्स, कोई बोल रहे हो? No, sir. हाँ ठीक। ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म बियर। हाँ, ट्रेजरी बिल क्या होता है कि जैसे मान लो कि सरकार को कोई काम करना है, उसके लिए नहीं, हाँ, सरकार को काम करना है, उसने आम पब्लिक से कुछ पैसा उधार लिया, तो वो ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में होता है ना। सरकार भी उधार लेती है काम करने के लिए। ट्रेसपास, ट्रेसपास मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के एंटर करना, इस कॉल्ड ट्रेसपासिंग। Yes, sir. ट्रस्टी कौन होता है? जैसे कि मान लो एक गार्डन है ना, उसके लिए हम ट्रस्टी बना दिए कि भैया जब तक आप इस गार्डन को, इसकी देखरेख करोगे। जो भी व्यक्ति किसी चीज की देखरेख करता है, उसका ओनर नहीं होता, उसकी देखरेख करता है, उसे कहते हैं ट्रस्टी। Yes, sir. टर्नओवर क्या होता है? टर्न और ओवर मतलब मैंने जितना पैसा अपने बिजनेस में घुमाया है ना। जैसे मान लो अपना मैंने सामान खरीदा, उसको फिर मशीनों में उसका फिनिश गुड बनाया, जितने भी काम पे लोग लगे थे उनको सैलरी दी, बिजली का बिल भरा, पानी का बिल भरा, टैक्सेस भरे, तो कुल मिला के मैंने पूरे साल भर में जो पूरा जो कैपिटल टर्न किया है ना, उसे कहते हैं Yes, टर्नओवर। sir. तो Yes, मेरा sir. टर्नओवर क्या है? जितना पैसा मेरे एक साल में फाइनेंशियल ईयर में टर्न होता है। अंडरराइटर, वन हु अंडरटेक्स इन रिटर्न ऑफ अ कमीशन, ठीक है। अनसिक्योर्ड, एक तो सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें कि अपन गारंटी देते हैं, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स, जैसे कि पर्सनल लोन्स वगैरह जिसको देते हैं। उसूरी, Yes. उसूरी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग उधार देते हैं ना, ये गांव वाँव वगैरह में बहुत चलता है कि एक बंदा होता है, वो सबको उधार देता है और खतरनाक टाइप का ब्याज देता है कि डेली Yes. 10 रुपए या डेली इतना परसेंटेज। तो ऐसे जो बंदे होते हैं जो उल्टे सीधे ये लोन देते हैं और उल्टे सीधी वसूलियां करते हैं, दादागिरी करते, उनका सारा धंधा जो दादागिरी पे चलता है। वो लोन देते हैं लेकिन उन लोगों को जिनको कि बैंक नहीं दे सकता, और जो उनसे रिटर्न लेते हैं वो भी अनाप शनाप रहते हैं, है ना। Yes, अब sir. वकालतनामा, ये हिंदी का है वर्ड, डॉक्यूमेंट बाय विच एन एडवोकेट इज ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट। हाँ, मतलब मान लो उसकी जो पार्टी है जो केस कर रही है वो कोर्ट में नहीं आ सकती, तो उसके अगेंस्ट में उसका वकील जाके पेश होता है, उसे कहते हैं वकालतनामा। वनीला इशू, Yes, sir. स्ट्रेट फिक्स्ड रेट केस, ये भी देखो वो है, सिक्योरिटी और शेयर्स का है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये तो आपने पढ़ा होगा है ना। Yes, sir. वेंचर कैपिटल क्या होता है?
capital invested in a business. वेंचर on the कैपिटलिस्ट basis- वो होते हैं जैसे कि मान लो मेरे पास पैसा है ना, और लोग होते हैं मार्केट में बहुत सारे जो नए नए आइडियाज लेके आते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम करोड़पति बन जाएंगे। तो उनके पास आइडियाज होते हैं पर उनका पैसा नहीं होता, तो उनको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है जो कि इन आइडियाज को फाइनेंस करें, और वो अगर चल निकलता है तो फिर तो जिसने पैसा लगाया उसका पैसा भी डबल, और जिसने आइडिया लगाया उसको भी Yes. पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो Yes, कि इन sir. आइडियाज पे पैसा लगाते हैं उन्हें कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, वेंचर, Yes, नया sir. वेंचर। वीजा, हाँ यहाँ पर क्या है, वीजा मतलब कि जैसे कोई सरकार अपने कंट्री में किसी को ट्रैवल करने की या रहने की परमिशन कुछ लिमिटेड समय के लिए देती है, उसे कहते हैं वीजा। ठीक है, Visa, वाउचर, yes, sir. डॉक्यूमेंट सम, हाँ जो एक डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन को के लिए सबूत हो, इट्स कॉल्ड अ वाउचर। वेजेस मतलब कि Yes. डेली वेजेस है ना, सैलरी कह सकते हो आप। वारंट, वारंट वही होता है, गिविंग द होल्डर द राइट टू बाय। ठीक है, फाइनेंशियल वारंटी मतलब कि मैं ठीक करा के दूंगा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है ना, एक वारंटी होती है, गारंटी होती है, पर यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। वॉच डॉग, तो ट्राई इज द वॉच डॉग फॉर in the telecom market, securing the interest of the users, consumers. वॉचडॉग मतलब होता है कि जो किसी की हितों की रक्षा करे। यहाँ कुत्ते उत्ते से कोई मतलब नहीं है, वॉचडॉग मतलब Yes. हाँ, इसका मतलब है कि जो Keep किसी की eye on the activities. नहीं, एक्टिविटीज भी नहीं, हितों की रक्षा करना। मतलब Yes, जैसे क्या sir. होता है कि टेलीकॉम ट्राई है, वो किसका वॉचडॉग है, वो ग्राहकों का वॉचडॉग है ना, ग्राहकों की Yes, हितों की sir. रक्षा करना। वाइंडिंग अप, भाई वाइंडिंग अप ने किया, किसी की भी बिजनेस बंद को वाइंड कर। अप करना यानी कि समेटना। विंडो Yes, sir. a maneuver engaged by companies, banks at the end of accounting period in order to impress the stockholders. हाँ, विंडो ड्रेसिंग देखो यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म है, वैसे विंडो ड्रेसिंग कुछ और होता है। क्या होता है कि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो क्या करती है कुछ बैंक की जो ग्राहक होते हैं ना उनको पैसा नहीं निकालने देती, ताकि उनकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर अच्छा खासा पैसा दिखाई दे। तो ऐसा काम जो करते हैं उसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, वुल्फ मतलब कि स्पेकुलेटर्स हु मेक अ किल इन द मार्केट। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज में जो इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब होता है हिंदी में सट्टेबाजी। सट्टेबाजी क्या होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो बहुत सट्टेबाज मार्केट में आ जाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, सबसे पैसा लेते हैं कि भैया लाओ पैसा दो, फिर बोलते हैं कि चलो अगर इंडिया जीत गई तो डबल तुम्हारा, और ये जीत गई तो इतना। तो ऐसे सट्टेबाज जो होते हैं उनको कहते हैं वुल्फ। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, not to be confused with the fixed capital. Working capital is another business term. It consists of the financial resources to maintain the, हाँ, वर्किंग एक तो कैपिटल होती है जो कि इनिशियल कैपिटल होती है जिससे कि हम बिजनेस शुरू करते हैं। एक वर्किंग कैपिटल होती है जिससे कि हम डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करते हैं, है ना, एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो उतना अमाउंट भी एक जगह निर्धारित किया जाता है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। रिट, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू डू और नॉट। हाँ, रिट मतलब कि कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसे कहते हैं रिट। रिट एंड रिट पिटिशन। रिट पिटिशन तो दो तीन ही बचे हैं। रिट To file case. हाँ, अ पिटिशन सीकिंग इशुएंस ऑफ अ रिट। अब किसी ने सरकार से एक ऑर्डर पास करवाया, सॉरी कोर्ट से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिट पिटिशन। तो वो अर्जी देता है कि मेरे को ये ऑर्डर पास करके दो, स्टे ऑर्डर दो, तो उसे कहते हैं रिट पिटिशन। राइट ऑफ, राइट ऑफ क्या होता है कि किसी के डेट्स को माफ कर देना। Yes, sir. जीरो कूपन बॉन्ड, अगेन ये भी तुम बेटा पढ़ लेना कि क्या है जीरो कूपन बॉन्ड। तो कुल मिला के Yes. इसके अंदर ऐसे शब्द है बेटा जो आपको मालूम होने ही चाहिए, तो इसको अपनी वोकैबुलरी में जल्दी से जल्दी शामिल करो, और इसमें से 3-3 4-4 वर्ड्स को रटो। उसके बाद CNBC आवाज या फिर न्यूज 18 वगैरह जो इकोनॉमिक चैनल्स हैं, फाइनेंस के चैनल्स हैं, उसको देखना शुरू करो, तो आपको ये वर्ड्स बार बार सुनाई देंगे। बार बार सुनाई देंगे तो बार बार आपका रिवीजन होगा और आपको फिर इसके मीनिंग भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये बिजनेस टर्म्स आपको बेटा मालूम होने चाहिए, एंड ये आपको मतलब आपके आगे की पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एग्जामिनेशन में तो करेंगे ही, जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो विल एंड हियर, राइट? Okay, sir. ठीक है, हम अभी एंड करते हैं, और इसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप मान के चलना कि हमारी नेक्स्ट क्लास संडे को है। ठीक,
हाँ जी, ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके सर।